Good morning, everyone. Welcome to class. This is your part one class for the teaching aptitude and CDP. CDP. So CDP means Child Development and Pedagogy, which is important for the CTET examination and OSTET, OTET, and upcoming teaching jobs also. But teaching aptitude is a different subject than the CDP because it includes the teaching learning process, teaching materials, different type of aids which help or support the teachers to guide the students or to deliver their teaching in the classroom system. What is classroom or what is a multilingual diversified classroom? Where the environment is very important for the teachers and student also. So we make the environment in a proper way with the different points and steps and elements. So we need teaching aptitudes to guide all of those things with the curricular activities, curriculum, extracurriculum activities, or that is called co-curricular activities. So we include here many points, and this video is very short and very fast also. So welcome to class once again, and Radhe Radhe. And today's point includes many points related to teaching, teaching characteristics, and teaching levels, teaching phases, and teaching a different type of characteristics with the types of teaching, etc. So the first point, we have to make sure that the teaching is an complete package of many information. Teaching is a process where the teacher wants to deliver their point to the knowledgeless person who knows the concept in their own branch but don't know how to manage this concept with one another. So students or learners are the knowledgeless one and the teachers are the knowledgeable person. So knowledgeable person, that means think about the sender and receiver process. Okay, sender send the information to receiver and receiver receive it. So we need a particular communication process when a sender and receiver is there in a communication process, and that is sender is a one pole and receiver is another pole. So think about the two-way communication process, so it is called bipolar. But when we include the curriculum or course content or the syllabus and the methods, etc., in other pole, then it is called tripolar process, right? So teaching is a bipolar process also, and teaching is a tripolar process also. So let's go to the slide, and my slides are just like a flow chart of all information. Okay, the one by one we move to explain every tidbit points. Okay, the first point, the teaching is delivering knowledge. Teaching gives information to everyone. Teaching means delivering your point or imparting knowledge. टीचिंग का मतलब होता है कि किसी को भी इंफॉर्मेशन देना. टीचिंग इज अ टू वे कम्युनिकेशन जहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट बोथ इंक्लूड होते हैं. तो टीचिंग एक बहुत भास्ट प्रोसेस है. टीचिंग एक ब्रॉडर कंसेप्ट है एंड इट इंक्लूड्स mainly two poles, that is in one pole in is teacher for a teacher and another pole is for students. Okay, next, teaching is a just like is an arts as well as science because it includes creative and skillful also. That is skillful activity. Teaching is a process how to deliver your point in the classroom. एवरी टीचर्स आर यूनिक इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. सारे टीचर्स यूनिक होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, बट एट द मेन टाइम दे आर ऑल्सो स्किलफुल, दे आर ऑल्सो क्रिएटिव. सो फैक्चुअल कंटेंट को फैक्ट्स को जब लॉजिकली अरेंज करके सिक्वेंशियल ऑर्डर पे बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड साइंस. जब हम लोग कोई मेथड को यूज़ करके डिलीवर करते हैं बच्चों के सामने नॉलेज को प्रेजेंट करने के लिए, हम लोग उसको क्रिएटिव बनाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द क्रिएटिव एंड स्किलफुल. दैट इज़ द पार्ट ऑफ आर्ट्स. सो आर्ट्स प्लस साइंस यहाँ पे टीचिंग होता है. तो टीचिंग और क्या है ना, टीचिंग अल्टीमेट गोल इज लर्निंग. टीचिंग का अल्टीमेट गोल है बच्चों को पढ़ाना, तो ये लर्निंग में हेल्प करता है. लर्निंग मतलब अधिगम. अधिगम. ओके, अधिगम मतलब हम लोग जो चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अधिगम. अधिगम मतलब लर्निंग. टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण. शिक्षण, शिक्षा का हम क्या करें, संचारण कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं. अभी नाउ टीचिंग टीचिंग एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, तो लर्निंग एक क्या हो गया, नैरोअर कंसेप्ट हो गया, बिकॉज लर्निंग इंक्लूड्स मेनी पॉइंट्स. पता है टीचिंग में आपके बॉडी के 3 डोमेन्स काम करते हैं. डोमेन्स मीन्स हेड. सो फर्स्ट वन इज द कॉग्निटिव, सेकंड वन इज द अफेक्टिव, थर्ड वन इज द साइकोमोटर. शॉर्टकट में याद रखना है कैप. 3 डोमेन्स. कॉग्निटिव मतलब होता है हेड, जहाँ पे आप नॉलेज रखते हो. सो नॉलेज है मतलब टू नो. अफेक्टिव मतलब जस्ट लाइक द फील करना या प्रभावित हो जाना. किसी को अगर आप बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, तो वो क्या करता है, वो पर्सन आपको सपोर्ट करता है, तो दैट पोर्शन इज कॉल्ड फीलिंग. वो कुछ आपके बातों से फील किया एंड वो
इन द मेन टाइम आपको रिस्पॉन्स दे रहा है कि सपोर्ट करके। सो ये इफेक्टिव टाइप है, प्रभावित हो जाना, इफेक्टिव। तो उसका मतलब हो गया टू फील। एंड फील करने के लिए आप क्या बोलते हो, उसमें भी क्या चाहिए, हेड एंड हार्ट। ठीक है, हार्ट, मेनली हार्ट बोला जाता है। देन साइकोमोटर, साइकोमोटर इज साइकोमोटर, ब्रेन से कनेक्टेड होके, साइकिक एक्टिविटीज और अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, इट इज कनेक्टेड विद योर ब्रेन। सो इसके साथ आपके बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं और रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी रहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड साइकोमोटर। मोटर मीन्स मूवमेंट, सो दैट इज टू डू। अभी बोलो कि हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन एंड हार्ट फील कैसा करता है, वो साइंस का पोर्शन है, बट यहाँ पे बोला गया हार्ट प्लस हेड, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव, फील करना। तो थ्री डोमेन्स, पता है ये थ्री डोमेन्स का कंसेप्ट किसने दिया, तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स ने दिया था। ठीक है, बीएस ब्लूम चिकागो यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे। 1956 में आई थिंक इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था ऑन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि एक टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए नीड होता है, तो हमेशा लो लेवल टू हाई लेवल को ही हम मूव करते हैं, सक्सीड करते हैं। तो ये जो हम सक्सीडिंग वे में आगे बढ़ रहे हैं, वी नीड सम डोमेन्स। तो इन 3 डोमेन्स में सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज जब मूव करेंगे, दीज आर द डोमेन्स, ये सारे डोमेन्स हैं। फर्स्ट कॉग्निटिव डोमेन, एंड 1956 में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी डिस्कवर हुआ था, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। रिवाइज टेक्सोनॉमी एंडरसन ने दिया था 2001 में। एंड इसमें कुछ नहीं, इसके भर जो वर्ड्स है उसमें हमने क्या किया, मूविंग वे से किया। जस्ट लाइक नॉलेज, नॉलेज का पॉइंट होता है रिमेंबर करना, तो रिमेंबरिंग, कंप्रीहेंशन, तो अंडरस्टैंडिंग, ऐसे हम सो ऑन पढ़ते जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैंने अभी बोला था स्टार्टिंग में ही कि आपका टीचिंग जो होता है ये इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है, दैट इज अ फेस टू फेस इंटरैक्शन। आई एंड यू, आई एंड यू, दैट मीन्स एक है सेंडर, दूसरा है रिसीवर, तो दोनों यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बाइपोलर बाइपोलर प्रोसेस चल रहा है, या फिर टू वे कम्युनिकेशन बोल सकते हो। तो मिनिमम टीचिंग एक टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। बट ट्राइपोलर प्रोसेस क्यों बोला गया, ट्राइपोलर प्रोसेस ये कंसेप्ट किसने दिया बोलो, जॉन डीवे ने, जॉन डीवे। ठीक है, जॉन डीवे ने दिया था। दैट इज कॉल्ड ट्राइपोलर प्रोसेस, ट्राई मीन्स थ्री, तो थ्री यहाँ पे है। एक ट्राइंगल का डायग्राम बनाया गया, फर्स्ट आपका रखा गया, दैट इज टीचर, एस रखा गया स्टूडेंट्स, एंड कंटेन, करिकुलम, एनवायरमेंट, एंड जो भी पॉइंट्स आते हैं ये सब रह जाएंगे आपके नेक्स्ट, मतलब जो भी थर्ड पॉइंट और थर्ड डोमेन के हेड पे। अभी देखो पॉइंट ये आता है कि जॉन दिवे तो चले गए, जॉन दिवे से पहले बाइपोलर को कौन डिस्कवर किया था, दैट इज एडम्स, एडम्स थे। ठीक है, अभी देखो ये पॉइंट्स यहाँ तक हमने कवर कर लिया, फटाफट चलते हैं। प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, दैट मीन्स हम क्या करें, टीचिंग मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्शंस प्रोवाइड करना और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है। टीचर एज ए जस्ट लाइक लीडर और एज ए फैसिलिटेटर ऑलवेज ट्राई टू गिव यू द इंस्ट्रक्शंस एंड यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू फॉलो इट, राइट। सो यहाँ पे आगे मूव करते हैं, इसमें लेवल्स कितने हैं, लेवल्स कितने हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स में जा रहे हैं, और भी पढ़ेंगे, डिटेल जाएंगे। आप एक एक पेज हर दिन करते रहो, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट करो, इसमें ही इन्फॉर्मेशन बहुत मिल जाएंगे। इसके बाद तो एमसीक्यूज करोगे, बहुत है अभी कंसेप्ट। सो 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल्स बेस्ड ऑन लर्निंग लेवल्स। टीचिंग को हमने कंसेप्ट वाइज क्या क्या है 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया। मतलब बच्चे कितने टाइप के होते हैं, मतलब बच्चों की वेराइटीज़ तो आप जानते हो, दैट इज़ मैंने आपको एक टेबल भी बताया था, तो टेबल में याद करना है। अगर मैं काउंटिंग कर लूँ फिर से आईक्यू के बेस पे, तो देयर इज़ वेरियस टाइप ऑफ लेवल्स। द फर्स्ट वन इज 0 to 25 में, 0 to 25 में कौन आता है ना, 0 to 25 में जस्ट लाइक स्टूपिड, डम्बो, ये बच्चे हैं। अगर 25 to 50 चले गए, 25 to 50, सो थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, मोरन इम्बेसाइल आ जाएगा। 50 to 75 में तो इम्बेसाइल्स आ ही गए। 75 to 90, 75 to 90 दैट इज़ द बिलो एवरेज, बिलो एवरेज। एंड 90 टू ऊपर जाना है, 90 टू ऊपर जाना है, दैट मीन्स 110, दैट इज द एबव एवरेज, तो अभी नहीं आएगा, एवरेज आएगा। ठीक है, 110 टू थिंक कर लो, जैसे कि 120 और 25, सो दैट इज द एबव एवरेज। 120 से 130 ये जो रेंज होता है, ये रेंज किसके लिए है, एबव एवरेज से ऊपर, दैट इज अ सुपेरियर मान लो। 130 to 140 ये हो गया आपका सुपेरियर से ऊपर, जैसे कि एक्सीलेंट जो बच्चे होते हैं उनका। 140 एंड अबव जो कि होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। सो ये आईक्यू के बेस पे जैसे रेंज होता है ना, तो सोच लो इतने वेराइटीज़ के बच्चे, कुछ लो लर्नर है, कुछ गिफ्टेड है, कुछ एवरेज टाइप के हैं, कुछ आधा समझ पाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को कुछ नहीं समझ पाते। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स or learners who receive the information in their own way or in pace or in their own rhythm also. So there are 3 levels as per the students basic information grasping point। यहाँ पे 3 levels हैं। 3 levels क्या है, फर्स्ट याद रखना मेमोरी लेवल, देन सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड वन इज द रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है,
मेमोरी लेवल में क्या होता है, बच्चा बस रिसीव करता है। शॉर्टकट बोल रही हूँ, फटाफट सुनो। मेमोरी लेवल में बच्चा क्या करेगा, बस रिसीव करेगा। बच्चा छोटा है, क्लास 1 टू क्लास 5 सोच लो, एंड बच्चा यहाँ पे बस रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर टीचर्स। तो यहाँ पे टीचर्स एक्टिव, स्टूडेंट्स पैसिव। टीचर्स एक्टिव, स्टूडेंट्स पैसिव। यहाँ पे टीचर्स का काम 100% है, एंड स्टूडेंट्स का काम 0 में है, बिकॉज वो ओनली इन्फॉर्मेशन लेंगे एंड उनको जो बताया जाएगा वही लेंगे। सो यहाँ पे जो टीचर्स हैं क्या करते हैं ना, वन काइंड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे बस क्या कर रहे हैं, पैसिव हैं, एंड पैसिवली इन्फॉर्मेशन को ग्रास्पिंग कर रहे हैं। हो गया। एंड इस लेवल को डिस्कवर किसने किया था, हर्बर्ट ने, ठीक है, हर्बर्ट, HERBERT। दैन आया नेक्स्ट लेवल इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल। एज भी थोड़ा बड़ा हो गया, क्लास 6 7, ऐसा सोच लो, क्लास 6 7 में बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, अंडरस्टैंड कर सक रहा है, एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल में 50-50 हो जाता है, मतलब स्टूडेंट्स का एक्टिविटी 50 एंड टीचर्स का एक्टिविटी 50, सोच लो। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज हो रहा है, मतलब लास्ट लेवल में वो क्या करेगा, बच्चा रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा, रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। एंड यहाँ पे टीचर्स का जो एक्टिविटी है, ओनली गाइडर, एज अ गाइडर वो रोल प्ले करेंगे, एंड टीचर यहाँ पे जस्ट लाइक पैसिव वे से प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिव रहेंगे एंड एक्टिविटीज़ को जल्दी जल्दी से परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन देंगे। एंड ये स्टेज को डिस्कवर किसने किया पता है, मॉरिशन ने। मॉरिशन मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल को डिस्कवर किया था मॉरिशन ने, बट रिफ्लेक्टिव लेवल का कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कंट्रोवर्सी में बहुत था तो उनका कोई पर्सन का नाम मेंशन नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल को मॉरिशन ने डिस्कवर किया था, एंड मेमोरी लेवल को हर्बर्ट ने डिस्कवर किया था। तो देयर आर 3 लेवल्स जिसके थ्रू बच्चा धीरे धीरे जाता है। अगर क्लास वाइज देखना चाहते हो रिमेंबर करने के लिए, तो सोच लो क्लास 1 टू क्लास 4 5 तक ये बच्चे हैं मेमोरी लेवल में, क्लास 5 टू 7 तक बच्चे अंडरस्टैंडिंग फेज में बड़े हो रहे हैं, क्लास 8 टू 10 हो गया, बच्चा स्टार्ट कर रहा है रिफ्लेक्टिव देने के लिए। उसके बाद तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, तीनों चीज़ें एट ए टाइम कर सकता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है पता है, वेरिएबल्स जैसे वेराइटीज़ होते हैं। तो एक टीचिंग प्रोसेस में 3 वेरिएबल्स होते हैं, देयर आर 3 वेरिएबल्स। एक टीचिंग प्रोसेस में शिक्षण के काम पे प्रोसेस जो प्रक्रिया बोलते हैं उसमें 3 वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड थर्ड वन इज इंटरवेनिंग वेरिएबल। अगर याद रखना चाहते हो तो डिपेंडेंट, हु डिपेंड ऑन अदर्स, जो निर्भर मतलब करता है और निर्भरशील है, तो दैट इज द स्टूडेंट, उसको कोई गाइड करना चाहिए। सो स्टूडेंट को हमने बोल दिया डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन है, जो खुद को मॉडिफाई कर सकता है, खुद के पॉइंट्स को मॉडिफाई करके मेथड्स का यूज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, या फिर स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी मॉडिफाई करके बना सकता है, वो होते हैं टीचर्स। तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड द लास्ट वन इज जो इन दोनों के बीच रहता है, इंटरवेनिंग जस्ट लाइक द मैथड्स, करिकुलम, पेडागोजी, इवैल्यूएशन टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। सो ये इंटरवेनिंग है। इंटरवेनिंग, इंटर वर्ड आया, इन बिटवीन दी अगर 2 पर्सन्स के बीच में कुछ होता है तो उसको हम इंटर वर्ड से बोलते हैं। जस्ट लाइक इंटर स्कूल कंपटीशन, 2 स्कूल के अंदर, इंटर कॉलेज कंपटीशन, 2 कॉलेज के अंदर। वैसे पर्सन्स के विद इन, एक ही पर्सन के विद इन अगर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं या फिर एक ही स्कूल के अंदर कुछ हो रहा है, तो इंट्रा वर्ड का यूज़ किया जाता है। सो इंटरवेनिंग जस्ट लाइक इंटरवेन भी बोला जाता है, इंटरवेन जस्ट लाइक हम बोलते हैं ना कि इन दोनों के अंदर कुछ चल रहा है, तो इन दोनों के अंदर, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इंटरवेनिंग हियर। सो ये पॉइंट हो गया। अभी आगे चलते हैं। आपको 4 पेज है, आपको एक-एक पेज से मल्टीपल चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, तो मैं इन्फॉर्मेशन देने को ट्राई कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम और भी इन्फॉर्मेशंस आएगा, एवरी डे के टाइम पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको मिलने वाला है, ठीक है? ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और 4-5 मिनट। टीचिंग हैज़ 6 ईज़। आपको पता है टीचिंग में 6 ई होते हैं। क्या होता है? पहला देखो, बच्चों को एंगेज करना, ठीक है? अपनी टीचिंग के थ्रू, टीचिंग इतना पावरफुल होना चाहिए कि आप बच्चों को एंगेज कर सको। अगर वो आपके पढ़ाने के बाद भी वो इंटरेस्टेड नहीं होता है सुनना, या फिर वो स्टे करना ही नहीं चाहता क्लास में, या फिर वो फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है, दैट मीन्स इट्स योर फॉल्ट, ये आपका ही फॉल्ट है। तो पहले ट्राई करो अपना वॉइस को बहुत ही पोलाइट बनाने के लिए, एंड बहुत ही हैवी ऑल्सो, एट द सेम टाइम हैवी ऑल्सो, दैट मीन्स बहुत ही लाउड क्लियर होना चाहिए, ठीक है? सो एंगेजिंग, आपका क्लासरूम कैसा होगा, एंगेजिंग होगा, जहाँ पे बच्चे भी एंगेज हो जाएंगे। फर्स्ट ई गया। एंगेज के बाद जब भी बच्चे को एंगेज कर दोगे तो बच्चों को लगना चाहिए कुछ नया बना रहे हैं, तो एक्सप्लोर, देन कोई चीज़ों को एक्सप्लेन करना। जब नया बना रहे तो क्या बना रहे हैं, क्या प्रोडक्टिव है, क्या नहीं है, वो सब एक्सप्लेन कर सके, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेन। सो एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, देन इसको हम क्या करेंगे, दैट इज इलाबरेट, बढ़ाएंगे। देन क्या होगा ना, 5th पॉइंट पे एक्सटेंड करोगे, और ज़्यादा लेंदी करेंगे। इलाबरेट मतलब जस्ट लाइक इंटरप्रीट, ट्रांसलेट और बड़ा करके लिखना, इसी टाइप में इलाबरेट करके लिखते हो ना, वैसा। एक्सटेंड मतलब भी सेम मीनिंग में आता है, बट और डिटेल्ड। लास्ट वन इज इवैल्यूएट, हर एक चीज़ का इवैल्यूएशन होना चाहिए। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, और आकलन का मतलब होता है आपका, आकलन जो बोलते हैं तो उसका मतलब होता है असेसमेंट। तो यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग। टीचिंग और क्या है देखो ना, टीचिंग एक इंटेंशनल, देखो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए होता है।
इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हो या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो स्टूडेंट्स का बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए चाहिए। सिस्टमैटिक होना चाहिए, कभी ए पढ़ा दिया उसके बाद आप बोलोगे बी पढ़ा के नहीं पढ़ा के आप बोलोगे के पढ़ाओ एल पढ़ाओ, नहीं चलेगा। सिस्टमैटिक होना चाहिए, सिक्वेंशियल ऑर्डर पे होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, फॉर्मल नॉन फॉर्मल दोनों होता है टीचिंग। बिकॉज फॉर्मली यू गिव योर टीचिंग इन द क्लासरूम सिस्टम, बट जब आप क्लासरूम से बाहर चल जाओ दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के बाहर चले जाओ एंड इन्फॉर्मेशन को आप बच्चों को दे रहे हो बट कोई कैजुअल एक्टिविटीज़ के थ्रू, कोई रूल्स नहीं रेगुलेशंस नहीं, बट बच्चों को आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एक्टिविटीज़। तो नॉन फॉर्मल टीचिंग में आ गया। अभी देखो टीचिंग और क्या है ना, टीचिंग इज ए लिंग्विस्टिक प्रोसेस, लैंग्वेज का सीखना, वर्ड सीखना, एवरी डे यू लर्न सम वर्ड्स ऑल्सो। सो वो ईजी भी हो डिफिकल्ट भी हो जो भी हो आप सीखते जरूर हो। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, लिंगुआ का मतलब होता है टंग, टंग का यूज़ करने से कि आपका वर्ड प्रोनाउंस होता है, साउंड्स निकलते हैं एंड आप कुछ अच्छे से बोल पाते हो, इसलिए ये लिंग्विस्टिक है। डायनामिक जो ऑलवेज चेंजिंग होता है, टीचिंग ऑलवेज चेंजिंग मोड पे जाता है, स्टैटिक नहीं है, बैलेंस में नहीं रहता है। ये क्या होता है ना, चेंजिंग होता है, जैसा एनवायरनमेंट वैसा वेशभूषा बोले जाता है ना, कि जिस देश गए उस देश का वेशभूषा ले लिया, वैसा बन गए, वैसे कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया, तो वैसा चीज़ होता है। टीचिंग भी डायनामिक होता है, चेंजिंग है ऑलवेज, ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट पे वो फिक्स्ड हो गया। ठीक है, इफेक्टिव होता है, सबको वैल्यूएबल लगता है, सबके लिए वो इंपॉर्टेंट भी है, प्रोग्रेसिव भी है। टीचिंग कभी डिग्रेसिव नहीं होता या फिर ऑपोजिट में नहीं चलता, प्रोग्रेस ही करता है, आगे बढ़ते रहता है। डेमोक्रेटिक है जो टीचिंग सबके लिए सोचता है, ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। ऑटोक्रेटिक में क्या हो जाता है ना, ये टीचर सेंटर्ड हो जाता है, ऑलवेज टीचर अपने बारे में सोचते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जब आप मल्टीपल स्टूडेंट्स के, लर्नर्स के बेनिफिट के लिए काम करते हो तो दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आपको वर्ड पता होगा, जो हम इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो क्या होता है, जो शासन सब मिलके चलाते हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो, इलेक्शंस के थ्रू हो, बट सब मिलके चलाते हैं, लॉ मेक करते हैं, तो हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रेजेंट है। तो वैसे सोच लो टीचिंग भी आप डेमोक्रेटिक होना चाहिए। सिंपैथी एंड काइंडनेस होना चाहिए आपकी टीचिंग में, ऑलवेज सिंपैथी। अभी बच्चों को कुछ भी नीड हुआ तो वो किसके पास बोलेगा, आपके पास बोलेगा, तो सिंपैथी ऑलवेज दिखाओ एंड काइंडनेस भी होना चाहिए। समटाइम्स असेसमेंट प्रोसेस में ये हेल्प करता है, ये फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, मतलब जैसा ढालना चाहो वैसा ढल जाएगा या फिर वैसा चेंज हो जाएगा। असेसमेंट फीडबैक, असेसमेंट फीडबैक मतलब आप यहाँ पे क्या करते हो, जस्ट लाइक बच्चों को आइडिया जो देते हो या फिर बच्चों को जो भी पढ़ाते हो उसको भी हम क्या करते हैं, उसको जजिंग करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट, क्वालिटेटिव असेसमेंट, क्वालिटेटिव असेसमेंट, क्वांटिटेटिव असेसमेंट, ऐसा होता रहता है। ठीक है, उसका भी हम फीडबैक देते हैं जजिंग करने के बाद। लास्टली कॉन्टेक्चुअल बेस्ड होता है, कॉन्टेक्स्ट के बेस्ड ये चेंज होता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट और भी देखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या है, मतलब देखो फटाफट बोल रही हूँ आपको, मैंने एस्पेक्ट्स पढ़ाया था। एक पर्सन का अगर क्वालिटेटिव चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस अगर देखना चाहते हो तो वो हो जाता है आपका क्या, बच्चों का जैसे फिजिकल ग्रोथ, कॉग्निटिव ग्रोथ, उसके लिए लिखा गया फिजिकल ग्रोथ, कॉग्निटिव ग्रोथ, ग्रोथ की जगह पर डेवलपमेंट वर्ड का यूज़ कर लो, अभी बेटर होगा और भी ज़्यादा। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, एम फॉर क्या होता है, दैट इज मोरल डेवलपमेंट एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल मतलब बॉडी ग्रोथ का प्रॉपर बैलेंस के साथ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव दिमाग का डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा। सोशल डेवलपमेंट जैसे आप सोसाइटी में जाते हो, इंटरेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोगों के साथ करते हो, तो वहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन सुनने को मिलता है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों से जानने को मिलता है, तो वो हो गया सोशल डेवलपमेंट। एंड इसके बेसिस पे 3 टाइप के स्पीचेस भी आते हैं। जब आप खुद से बात कर रहे हो, मिरर देख के या खुद से ही कुछ सोच रहे हो, खुद से ही आप कुछ पॉइंट को निकाल रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द इनर स्पीच। जब आप अपने फैमिली मेंबर्स से बात कर रहे हो या फिर जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, पार्टनर के साथ बात कर रहे हो, तो ये सब होता है जो स्पीच या कम्युनिकेशन आता है, प्राइवेट स्पीच। एंड द लास्ट वन, जब आप ब्रॉडर सेंस में बाहर जाके सारे लोगों से बात करते हो, दैट इज़ कॉल्ड सोशल स्पीच। ये सारा भी यहाँ पे आ जाता है। एंड मैक्सिमम कंसेप्ट में बोला जाता है लेव वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग कि ये जो सोशल इंटरेक्शन है इसी से ही बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, बिहेवियर चेंजेस होता है। बिहेवियर कांस्टेंट वे फिक्स्ड होता है कि वो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कांस्टेंट कौन से रोल्स को कैरी करेगा और कैरी आउट करके आगे लेके जाएगा, वो भी मेंटेन होता है। सो ये सारा चीज़ आपका सोशल में। इमोशनल, इमोशनल का कंसेप्ट आपको पता होगा, एरिक एरिक्सन ने दिया था। सॉरी, इमोशनल, राइट राइट राइट, गलती हो गया। सो इमोशनल ना आपके गोल्ड स्टेन ने दिया था, गोल्ड स्टेन और एक पर्सन थे जो थोड़ा हेल्प किए थे, गोल्डमैन ने। इमोशनल में आपके 2 टाइप के इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हो बहुत काम अच्छे होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो या फिर डिप्रेशन एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, देन आपके जितने भी काम है वो ख़राब होता है। तो उसके बेसिस पे इमोशंस जो है, इमोव हियर एक लैटिन टर्म से आया है,
एंड उसका मतलब होता है स्टेट अप। आपके दिमाग में बहुत सारे चीज़ क्या होता है ना, वन काइंड ऑफ मिक्सिंग चल रहा है, तो ये पॉइंट होता है इमोशंस में। मोरल में क्या होता है, नैतिक विचार नीति के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हम गुड एंड बैड थिंग्स को बच्चों को सिखाते हैं। एंड बिहेवियरल ऑल ओवर जब मिल जाता है तो बिहेवियरल चेंजेस आता है। सो ये हो गया पॉइंट। तो बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट इज पॉसिबल थ्रू टीचिंग। देन क्या होता है, बच्चों को और क्या सिखा सकते हो, एडाप्टेशन कैसे ग्रहण करना है, कैटेगोराइजेशन कैसे चीज़ों को वर्गीकरण करना है, मतलब छोटे छोटे क्लासेस में डिवाइड करना, क्लासिफिकेशन बोल सकते हो, एसिमिलेशन सारे टाइप के आइडियाज़ को गैदर करना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का शॉर्टकट बोलते हैं गेट टुगेदर जैसा वर्ड का यूज़ कर सकते हो। इंटरैक्टिव है, इंटरेक्शन बोला गया। एकोमोडेशन, जब एक न्यू सिचुएशन आ जाए, न्यू सिचुएशन के बेसिस पे आपके दिमाग में कोई आइडियाज़ ना हो, ठीक है, तो हम ओल्ड आइडियाज़ को रिप्लेस करते हैं न्यू आइडियाज़ के साथ। एंड न्यू आइडियाज़ किसके बेसिस पे होगा, उस न्यू सिचुएशन के बेसिस होगा, तो दैट वन इज कॉल्ड एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्या होता है, हम क्यों टीचिंग देते हैं, टीचिंग एक अर्निंग ऑफ लिविंग भी होता है, मतलब हमें एक प्रोफेशनली ग्रो करवाता है, एंड टीचिंग के थ्रू हमें अर्निंग भी मिलता है, प्लस बच्चों को हम हेल्प भी करते हैं। ग्रोथ ऑफ नॉलेज, जितना आप आगे पढ़ाओगे उतना ही नॉलेज आपके अंदर आते जाएगा, ये एक प्रोसेस है। लास्ट आज के क्लास में है आपका टाइप्स ऑफ टीचिंग। तो टाइप्स ऑफ टीचिंग में देखो, शॉर्टकट दे रही हूँ, डिटेल तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, बट शॉर्टकट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सोच लो कितने इन्फॉर्मेशन आपने गैदर कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस, शासन के हिसाब से, जो शासन संबंधित होता है उसके हिसाब से 3 टाइप होता है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, नो इंटरफेरेंस। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरेंस हो गया, सो सॉरी इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, INTERFERENC, ठीक है। ऑटोक्रेटिक क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड है, टीचर जब अपने हिसाब से सब कुछ चलाता है एंड बच्चों के बारे में नहीं सोचता, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है, जहाँ पे लर्नर इन्वॉल्व होता है एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ में, एंड यहाँ पे लर्नर एक्टिव फेज में होगा एंड टीचर उसको बस गाइड करेंगे। नो इंटरफेरेंस, जहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, एंड टीचर प्रेजेंट है बट स्टूडेंट्स को उनका नीड नहीं होगा, एंड स्टूडेंट्स फ्री है, मतलब टीचर का हेल्प ले सकते हैं स्टूडेंट, बट इतना ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चलता है कि टीचर्स प्रेजेंट होते हैं बट स्टूडेंट्स खुद से पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स आर फ्री टू स्टडी, ठीक है। यहाँ पे हो गया कुछ पॉइंट्स, इधर आ जाओ। सो ये आपके टाइप्स ऑफ टीचिंग। अच्छा, और एक जो टाइप्स ऑफ टीचिंग होता है वो इस टाइप में आता है, जैसे कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, जो पहले ही समझा चुकी हूँ आपको, ठीक है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी उसके बाद है, सो कल के क्लास में हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को लेके चलेंगे। सो आप सोचोगे कि ये चीज़ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जितने भी अपकमिंग टीचिंग जॉब्स आ रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड पहले ना एमसीक्यूज करने से पहले अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। सो सीटेट के लिए हो या ओटेट हो, स्टेट और अपकमिंग जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही माइंड मैप्स के साथ और भी आएगा इन्फॉर्मेशंस। सो आई होप कि आज आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ शेयर विथ एवरीवन एंड सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा एंड कौन से पॉइंट्स आपको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, उस पॉइंट पे मुझे मैसेज करो कमेंट बॉक्स में, सो दैट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ ऑल्सो विथ माई प्रॉपर नोट्स एंड ट्राई टू शेयर विथ यू। थैंक यू सो मच। राधे राधे।